Hello, and welcome to Famhealth, a platform where we inform, inspire, and educate you on everything health. In our journey to highlight issues relating to mental and emotional well being, today we discuss a problem that commonly affects children of all classes who are constantly exposed to social media: toxic masculinity. In our fifth episode of the High School Bus series, we tackle questions such as what role does this play and how does it affect our mental health with teenagers Pranav, Manvi, and Chirag. Hi everyone, and thank you for joining us today. I'm going to begin with my questions. Let's sort of introduce the topic and then we can move forward. What exactly does masculinity mean to you? I mean, आप कैसे उसको define करोगे? And when you think of masculinity, क्या qualities आपके दिमाग में आती हैं? So we'll start with Manvi. In my perspective, जैसे देखा जाए तो जो masculinity का view है society में और मेरा view is very different. For me, masculinity means a man who's willing to show his strengths and weaknesses and is willing to be vulnerable, or he makes a woman feel very comfortable, like be a gentleman. I know it is very quite contrary to the popular belief, but that's what I think. Thank you, Manvi. Chirag. Masculinity, according to me, I think like वो सारी qualities हैं which are associated with man. So जब भी if I think of it, so like the first words which come to my mind are like strong or courageous, or like the house worker, like who earns income. So these are the first words that come to my mind. Thanks, Chirag. Pranav. मेरे हिसाब से मैस्कुलिनिटी ऐसे गुण है जो हम सोचते हैं कि लड़कों में होने चाहिए. मेरे हिसाब से ये गुण होते हैं कि लड़का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और जैसे मानवी ने बोला अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस शोकेस कर सके. Thank you, Pranav. And which brings me to my next question. अभी ये सब discuss हुआ कि contrary to how society looks at masculinity, there's this term that we hear a lot, toxic masculinity. बहुत बार हम लोग सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, बहुत बार टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, क्लासेस में डिस्कस होते हैं ये सब. What according to you is toxic masculinity? I think we'll start off with Chirag. So according to me, toxic masculinity is when a man is not able to like truly express himself in front of the society. So it can be either if like he's over expressing himself, or if he's under expressing himself. Like one example which I can think of is like men are not allowed to cry. So अगर कोई बच्चा रोता है तो भी उसको बोलते हैं कि ये मतलब बच्चे नहीं रोना चाहिए, ये सब लड़कियां रोती हैं ऐसे. So it's an example of toxic masculinity. I think that's like a very evident example जो हम लोग सब सबने एक दो बार सुन रखा होगा. Manvi, what are your thoughts? I think toxic masculinity में ऐसे वो perfect picture create करते हैं, like ऐसे 6 feet और taller होना चाहिए, with a strong body, and like physical strength के लिए भी आज चिराग सर लड़की की तरह नहीं रोते, लड़की की तरह मारा मत कर. और फिर वो perfect image जब हो जाती है, then जो लोग के पास वो क्वालिटी नहीं है, they feel very left out. उनको ऐसा लगता है कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट इन नहीं कर पाते. Pranav? मेरे हिसाब से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इज ऑल दीज ट्रेट्स दैट वी एसोसिएट विद मैन, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके अंदर वो हो. एंड ऐसा नेसेसरी नहीं दैट ऑल मेन हैव टू बी लाइक दैट, बट वी हैव क्रिएटेड दिस परफेक्ट फिगर कि ये अच्छी चीज होती है, हर लड़के को ऐसे होना चाहिए. जैसे मानवी चिराग ने बोला कि बल्कि मतलब मस्कुलर होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए. एंड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लड़के रोते नहीं है या लड़कियों की तरह मत रो. All of these things are toxic masculinity because ये हमें दिखाती है that men have to be a certain way, and this leaves no space for freedom and to be really expressive of who you are, which is how masculinity really should be. And it sort of conforms you
to a social ideology that is not entirely yours. I think that is where it becomes toxic, because that is not who you are, and that starts affecting you mentally and physically. And that takes a toll on every sphere of your life. And hence we call it toxic. Thank you, Pranav. To sum up everything that you've said, you've defined all three of you. You've defined these two terms, masculinity and toxic masculinity. Do you think that your definition, या फिर आपका जो idea है of these terms, has it been influenced by an external source? Do you think society has influenced how you look at these terms, or social media has influenced it? How has this concept been sort of twisted in your head according to what somebody else might have said? Pranav, would you like to start us off? I think it's ये concept बहुत affected है by society and people around us. And for the society, because हम बड़े हुए हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लड़कियों की तरह ये मत करो, लड़कियों की तरह वो मत करो, ये चीज सिर्फ लड़कियां करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, खाना बनाना है. नाउ आई कैन बी पैशनेट, मेरे को खाना बनाना अच्छा लगता है, आई कुक एंड आई लाइक इट, बट बिकॉज इट्स समथिंग which is said कि girls do it, कि लड़कियां करती हैं ये. तो when I do it, or when I do stuff that's art and craft, तो लोग मेरे पे नीचे आंखों से देखते हैं कि ये लड़का नहीं है, ये चीजें क्यों कर रहा है. तो सोसाइटी ऐसे बहुत इफेक्ट करती है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, एंड हमें दिखाती कि दिस इज हाउ अ मैन शुड बी, आपको ऐसे ही होना चाहिए. बट ऑन द अदर हैंड, आई थिंक सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया काफी आगे बढ़ चुका है. सोशल मीडिया पे हम इतने सेलिब्रिटीज को देखते हैं, इतने सारे पेजेस है जो हमें दिखाते हैं कि ये सही नहीं है, एंड दे शो यू दैट आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना चाहिए, और जो आपको सोसाइटी बताती है और सारी जो टॉक्सिक चीजें हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए. सारे सपोर्ट पेजेस हैं, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, वो खुद अपने आप को ऐसे दिखाते हैं, एंड बिकॉज इतने लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत बड़ा चेंज होता है उससे, बिकॉज दे आर टेकिंग ए स्टैंड and then they're showing the world that you can do the same. Thank you, Pranav. Chirag? So yeah, मेरे हिसाब से भी मतलब मेरी ओपिनियन सोसाइटी की वजह से इट हैज बीन अफेक्टेड. सो अपन सब जानते हैं कि अपनी सोसाइटी में लाइक मैन को एक ज्यादा सुपीरियर पोजीशन दी जाती है. एवरी सोसाइटी में लाइक मैन इज द हेड ऑफ द हाउस, एंड मतलब उसको सुपीरियर माना जाता है कि he has to earn the family income. So because of like income as a factor, usko automatically he is given higher darja, if you know in Hindi. So that is being affected. And अपन को बचपन से यही मतलब पूरी कल्चर में है. अगर मैं अपनी दादी से बात करूं तो उनका भी माइंडसेट ऐसा ही होगा कि हम लोगों का घर पे काम करने का है, और जो हमारे हस्बैंड है उनका ऑफिस जाके पैसे कमाने का. Thank you, Chirag. Manvi? अगर इस बात को ही हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें, इस टाइम पीरियड में बहुत लोग होते हैं, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ मेन जो घर पे रहते हैं टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन रादर देन विमेन, और फीमेल्स काम पे जाती है. और ऐसे सोशल मीडिया पे भी देखे, एज प्रणव सेड, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं दैट कुछ मेकअप वीडियोस डालते हैं, they wear nail paint, they're into fashion and everything. I mean, देखा जाए तो stereotypes break हो रहे हैं, but the problem here is बहुत लोग हैं जिनका mindset अभी भी इतना ज़्यादा backwards है कि उनको hate comments मिलते हैं, उनको ऐसे cancel culture जो है देखा जाए तो everything ऐसे होता है. और फिर वही जो लोग अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, इफ दे ट्राई टू पुट देयर पॉजिटिव साइड फॉरवर्ड, और वो नहीं कर पाते, एंड दे गेट सो डिमोरलाइज्ड एंड डीमोटिवेटेड टू डू इट. तो जो लोग करना भी चाहते हैं वो नहीं कर पाते. Thank you. Which brings me to my next question. एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जब हम सुनते हैं, एक ट्रेन ऑफ थॉट है कि एंड बहुत एविडेंट है ये, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कि आप इमोशनल नहीं हो सकते हो, आप अपनी
मेंटल हेल्थ को कभी एड्रेस नहीं करते हैं, इमोशनली वनरेबल नहीं हो सकते हो इन फ्रंट ऑफ एनीबडी और इवन पर्सनली. So this is more specific to Pranav and Chirag, and Manvi, I'll get back to you. But ये जो train of thought है Pranav and Chirag, do you think इसने आपके खुद के mental health को affect करा है, आपकी emotional growth को affect करा है? क्या कोई experiences हुए हैं जब you wanted to show your emotions, but you didn't feel comfortable enough to because everyone was sort of invalidating your feelings. So ऐसे कभी कोई experiences हुए हैं? Chirag, we'll start off with you. So yeah, ये belief I think ये काफी हद तक सही है कि because of this belief कि मर्द नहीं रो सकते और लड़के नहीं रो सकते, so it has affected my mental health. So even अगर मेरी लाइफ में कोई दिक्कत होती है तो and if I go and I talk to my parents, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं उनके सामने रो सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो क्या सोचेंगे कि ये इतना मतलब बहुत कायर सा है या फिर बहुत जल्दी रोने लग जाता है. और अगर इसी जगह मैं अपनी बहन को देखूं तो वो अगर आसानी से रो सकती हैं, सो वो बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पाती हैं खुद को पूरी फैमिली के सामने. सो या दैट हैज अफेक्टेड माय मेंटल हेल्थ इन अ वे. Pranav? आई थिंक मेरी मेंटल हेल्थ पे भी इसका काफी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ कुछ चीजें हुई. मतलब इफ आई गो थ्रू अ प्रॉब्लम एंड इफ आई एम फीलिंग लो, तो जैसा चिराग ने बोला, नहीं रो सकते. मतलब फ्रेंड्स के सामने भी, अब फ्रेंड्स के सामने नहीं रो सकते, फैमिली के सामने, मॉम डैड के सामने भी आपको लगता है कि वो क्या सोचेंगे, उनको लगेगा कितना बड़ा बच्चा हो गया, अभी भी लड़कियों की तरह रोता है, क्योंकि वो उसी आइडियोलॉजी से बड़े हुए हैं. उनके टाइम पे इतना चलता था, उनके दिमाग में भी वही है. तो अब जब हमें भी, हम अभी बड़े हो रहे हैं और हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम करेक्ट आइडियोलॉजी से बड़े हों, क्योंकि एक बार आप जब छोटे होते हो तभी आपके अंदर जो आइडियोलॉजी, जो थॉट प्रोसेस पूरा आता है, वही जैसे जैसे आप बड़े होते हो वही चलते रहता है. और वो मेरे को सारे मेरे आसपास बड़ों में दिखता है. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अभी से उसको सही करें. और आई थिंक यही एक चीज है जिससे मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करा है, क्योंकि मैं किसी से बात करने में भी पहले मेरे को थोड़ी शर्म आती थी, मेरे को डर लगता था कि मैं किसी को बताऊंगा कि मेरे को ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो फिर लोगों को लगे कि मैं कमजोर हूँ या फिर मैं कायर हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है. तो आई थिंक इसने मेरी मेंटल हेल्थ को काफी अफेक्ट करा है. But being the point about being emotionally vulnerable, मेरे को पता चला that this is wrong, and ever since I found out कि ये गलत है, मैं constantly कोशिश करी इसको चेंज करने की. एंड ये सारे जो भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के ट्रेट्स हैं, आई कीप रिमाइंड, मैं खुद को याद दिलाते रहता हूँ कि ये गलत है, और पॉजिटिवली खुद को बताते रहता हूँ कि ऐसा कर सकते हैं, इट्स ओके टू बी लाइक दिस, एंड आप ऐसे भी हो सकते हो, ये कर सकते हो आप. तो खुद को पॉजिटिवली रिमाइंड करना आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज होती है. एंड सबके लिए भी इट्स कम्प्लीटली ओके टू बी द वे यू आर. Thank you, Pranav. बहुत अच्छे तरीके से आपने you shared everything that you've gone through. Manvi, coming to you, जैसे of course you must have so many friends and family members who also जो भी struggle करते हैं with all of these pressures society वगैरह में. आपने इनको कैसे हेल्प करा है? क्या आपने इनको कभी हेल्प करा है? क्या आप इनको कैसे कंफर्ट करते हैं? हाउ डू यू थिंक एवरीवन एल्स कैन सॉर्ट ऑफ ब्रेक these stereotypes? मेरे हिसाब से प्रोवाइडिंग समवन विद अ सेफ स्पेस, मतलब गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म जिसमें वो खुल के बात कर सकते हैं और अपने व्यूज प्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसे दिल खोल सकते हैं अपना, rather than being scared to open up. I try to do that and providing an area without judgment. ऐसे जब हम किसी को जज करते हैं तो उन लोगों को डर लगता है कि वो ओपन अप नहीं कर पाए. बट अगर आप if you're very open minded towards everything and you help them talk about their feelings, it plays a very important role और बहुत ज़्यादा crucial हो जाता है लोगों के लिए ओपन अप होना. तो आई थिंक
without judgment and giving them a safe space is a very good way to help them cope. Thank you, Manvi. Some really good points. Which sort of coming to my next question now, it's a little on the other side of it. ये जो सारी stereotypes हैं society में, do you think on a personal level आपने कभी इनको encourage करा है? Do you think subconsciously or consciously आपने कभी बोला है कि ये लड़का है, ये क्यों रो रहा है, या फिर तुम लड़के होके how are you participating in dances? Isn't that girly? We come across terms such as girly. So, do you think you've ever encouraged these stereotypes? और अगर करे हैं तो अब when you look back at it, how do you feel? And if there is a change in attitude, how did this change of attitude come about? मतलब क्या changes हुए आपने कि आपका thinking perspective अब different हो रहा है? So I think we can start off with Chirag. Yeah. So I think I unintentionally मैंने ऐसा कभी हो सकता है किया हो. So like मेरी एक relative है, she's a nurse. So a male is a nurse. So like everyone in the family used to like मजाक उड़ाते थे उनका, क्योंकि नर्स एक ऐसी जॉब देखी जाती है जो यूजुअली वुमेन करती हैं. एंड व्हेनेवर अगर अपन कोई मूवी भी देखते हैं, सो यूजुअली द रोल इज गिवन टू अ वुमेन कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर. सो अनइंटेंशनली कभी उनका मजाक मैंने भी उड़ाया. फिर मैंने कभी सोचा हो कि मतलब वो ऐसी जॉब क्यों करते हैं, उनको ऐसी जॉब करनी चाहिए जो सोसाइटी एक्सेप्टेबल मानती हो, जैसे कि बिजनेसमैन या फिर कुछ और मेल थोड़ी मैनली जॉब जिसके अंदर कुछ फिजिक बहुत अच्छा चाहिए हो. क्योंकि इफ देयर इज अ लाइक लेबर की जॉब, अगर कोई कारपेंटर है, सो अपन कभी इमेजिन नहीं करते कि कोई फीमेल कारपेंटर होगी. सो दैट ऑलवेज मतलब थोड़ा एक जॉब की तरह एक स्टीरियोटाइप रहता है. सो लाइक नाउडेज लाइक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आई थिंक, क्योंकि सारी सोसाइटी को अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करने का प्लेटफॉर्म मिल गया है. सो एंड दिखता है कि और एज ग्रुप्स एंड और डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री में लोग क्या सोच रहे हैं. सो मेरी भी थोड़ी सोच बदलती है. सो नाउ इफ आई एम टॉकिंग टू समवन, मैं उतना जज नहीं करता. लाइक आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसकी क्या ओपिनियन होगी अगर वो ये चीज कर रहा है, एंड आई ट्राई टू कीप एन ओपन माइंड. सो आई थिंक दैट हेल्प्स. अगर अगर आपको कोई कंफर्टेबल सोसाइटी बनानी है जिसके अंदर लाइक मैन वुमेन उतनी इक्वल स्पेस दी जाए, एंड देयर इज नो कि इट इज टाइम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट राइट नाउ एंड अभी मैन एम्पावरमेंट हो रहा है. सो ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए. अगर दोनों जेंडर्स को इक्वल मिले, सो दैट्स व्हाट आई थिंक. Thank you, Chirag. Manvi. I'll be very frank here. बड़े होते होते as Pranav said कि हम लोग को ऐसे दिखाते हैं कि लड़के नहीं रो सकते और ये सब. इवन लड़कियों के साथ होता है कि तुम लड़के की तरह एक्ट कर रहे हो, तो उससे हमारा माइंडसेट वैसे ही सेट हो जाता है कि ये क्वालिटीज लड़कों की है, ये लड़कियों के पास नहीं हो सकती, और जो लड़कियों की क्वालिटीज है वो लड़कों के पास नहीं हो सकती. अब इस डिस्टिंक्शन को हटाने के लिए तो मेन प्रॉब्लम विद मी वाज मेरे को समझ ही नहीं आया कभी. बट जब इंटरनेट एंड सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, एंड आई मेड अ लॉट ऑफ गाय फ्रेंड्स, तो जब उनसे बात करी और उनसे जब इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है, तो ऐसे समझ आता है कि दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी. और वो लड़के हम लोग को ऐसे समझा सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, एंड द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग. सो दैट हेल्प मी चेंज माय माइंडसेट. Thank you, Manvi. Pranav. आई थिंक मैंने भी कभी मतलब अपनी जिंदगी में काफी बार पहले ये स्टीरियोटाइप को प्रभावित किया होगा. लोगों का मजाक उड़ाते हुए हम मजाक में कुछ कुछ बोलते हैं. जैसे मैंने बताया, हमें बचपन से इतनी सारी चीजें बोली गई हैं कि ये लड़कियां करती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, एंड ऑल ऑफ दिस. तो मजाक मजाक में मैंने भी बोल रखा है, और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैंने बोला वो, क्योंकि पहले मेरे को पता नहीं था कि वो कितना अफेक्ट कर सकता है किसी को, और इसका एक्चुअल मीनिंग. तो आई थिंक बिकॉज व्हेन आई गॉट टू नो, तब मेरे को बहुत फर्क पड़ा एंड अफेक्टेड मी, एंड आई मेक श्योर दैट आई डोंट डू इट अगेन. तो इट्स बहुत जरूरी है कि लोगों को ये समझ हो कि आप जो बोल रहे हो वो किसी को कैसे अफेक्ट करेगा.
और आप जो बोल रहे हो उन वर्ड्स का एक्सटेंट क्या है, तो एक वो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड या Thank you, Pranav. And I think the point that Manvi made right now, कि हम लोग as I think as women, even we're encouraged to distinguish between uh, masculine characters and feminine characters. And I think there's this, I think hota hai ki even we tend to act like we tend to follow masculine qualities sometimes. So I think wo point bahut अच्छे से I think Manvi brought that up. That was a very good point. Um, this is sort of to conclude this discussion and come to the end and just wrap up. um I have, this question goes two ways. Ek to, talking about creating a safe space, jaise itni baat hui, creating a safe space and informing and educating ourselves, and self awareness jo ek hoti hai. um अगर आप like if you ever come across a person जो बहुत struggle कर रहा है इस toxicity से, how would you sort of encourage them to be themselves, okay, on a very personal level? And then and then the second part of the question is, अगर कोई opportunity होती तो आप एक large scale global impact कैसे बनाती? What initiatives would you take to make some sort of a global impact? The future generations or the coming generations or even this generation don't have to face issues such as toxic masculinity. Manvi, would you like to start? Like personal level पे जैसे मैंने पहले बताया, having a safe space without judgment is the one of the biggest things that help you help you get over toxic masculinity. But on a global level, सबसे बड़ी चीज है लोगों का mindset change करना. And देखा जाए तो अपनी generations में it's already working, और our generation is very open-minded. तो आई डोंट थिंक इट विल बी सो डिफिकल्ट, बट ऐसा अभी भी बहुत से लोग हैं जो अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर पा रहे एंड दे हैव अ वेरी टॉक्सिक माइंडसेट. तो अगर हम एडुकेट करें और फिर सोशल मीडिया पे जो हेट कमेंट्स है उनको ध्यान में ना दें, तो ऐसी चीजों से हम इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस फॉर द फ्यूचर जनरेशन. Thank you, Manvi. Pranav? मेरे हिसाब से एक चीज जो बहुत बड़ा प्रभाव ला सकती है, जैसा चिराग ने बोला कि हम इतना अभी फेमिनिज्म पे ध्यान दे रहे हैं, मैस्कुलिनिटी पे भी कुछ करना चाहिए. क्योंकि मेरे को लगता है हम जो फेमिनिटी अभी देख रहे हैं वो काफी हद तक सूडो फेमिनिस्ट भी है, और वो ना तो फेमिनिटी को प्रॉपर तरीके से दिखा रही है और उसी तरीके से वो मैस्कुलिनिटी को भी किसी हद तक डिग्रेड कर रही है, क्योंकि वो असली मैस्कुलिनिटी नहीं दिखा रही है. वो फेमिनिटी वो वुमेन को एम्पावर कर रही है एंड इन सम वे वो लड़कों को दिखा रही है कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी मस्कुलर, आपको आपको जिमिंग करनी चाहिए. मतलब पीपल हैव दीज थिंग. मेरे आई नो फ्रेंड्स ऑफ माइन जो जिमिंग करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि वो लड़के हैं, उनको हट्टा कट्टा होना चाहिए. तो awareness and being able to talk to people is something that's very important. And अगर हम चाहते हैं कि future generations तक फर्क पड़े, तो हमें स्कूल के अंदर जो चीजें पढ़ाते हैं, I think लाइफ स्किल्स की एक क्लास हो सकती है स्कूल के अंदर, जहां पे आपको स्कूल में समझाएं ये सारी चीजें. मतलब all of these things, how to treat a girl, what's the proper meaning of all these things. बिकॉज इतनी सारी इंफॉर्मेशन है अवेलेबल ऑनलाइन, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम हमारे आसपास देखते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन काफी हद तक गलत भी होती है और हार्मफुल भी होती है. तो एक प्रॉपर तरीके से अगर हम बचपन से लोगों को समझाएंगे तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर जनरेशंस इसी तरह से ग्रो करेगी. बिकॉज जैसे मैंने बताया, हमारे पेरेंट्स की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है. And if we want our children to grow up with the same ideology, the adults should take a move and make sure that we at this age know it properly, because हम जो सीखेंगे वो हमारे छोटों को सिखाएंगे. And ये अपने आप सेल्फ सिस्टम बन जाएगा कि आप एक बार एक जनरेशन को सिखाओ and that will keep going on. क्योंकि जैसे चिराग ने बोला,
हमने महाभारत से कुछ देखा है, महाभारत 5000 साल पहले हुई थी, पर हम उसके गुण अभी भी अपने अंदर अपनाते हैं। तो इसी तरीके से एक बार बहुत जरूरत है चेंज की। Thank you, Pranav. जो point आपने बोला about the entire education system, very important point. Thank you for bringing that up, Chirag. So मेरे को ऐसा लगता है कि या एजुकेशन तो इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी एंड एजुकेट करते हुए अपन को ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि ऐसे कोई स्पेसिफिक रोल है नहीं जिसकी वजह से आपको उसकी तरह ही बनना है। अगर मैन के लिए एक बना रखा है कि उसको एग्रेसिव होना है या फिर बहुत फिजिकली स्ट्रांग होना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी वैसे ही हो। लाइक इफ अगर मैं बहुत पतला हूं तो ऐसा नहीं है कि मेरे को जिम जाके बिल्कुल, क्योंकि आइडियल कैरेक्टर मैन का ऐसा होता है कि बहुत बड़ा, मतलब फिजिकली अच्छा, तो मेरे को वो जिम जाना है। मेरी एक अलग पर्सनालिटी है। सो आप एक सेम टैग हर जने को नहीं दे सकते, कि नहीं तो फिर हर जना सेम ही हो जाएगा। इफ आप मैस्कुलिनिटी का टैग हर जने के अटैच कर दो, सो उसको थोड़े कैरेक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं मेल में कि जो बहुत केयरिंग हो। सो आप उनको पर ये नहीं बोल सकते कि तू बिल्कुल लड़की की तरह रो रहा है या फिर उसकी तरह बहुत कमजोर है या फिर इमोशनली वीक है, क्योंकि ये सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है एंड ये खुद डेवलप होती है। तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि ये रोल्स हैं। तो पढ़ाते समय भी आपको मतलब बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो खुद डेवलप करें कि उनको कैसे डेवलप होना है। अगर उनको केयरिंग होना है या फिर उनको बहुत स्ट्रांग होना है, कॉन्फिडेंट होना है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फीमेल को भी बता रहे हैं कि आपको स्टार्टिंग से कुछ घर में काम करना होता है, शादी के बाद आपको जाना है। ऐसा हो सकता है कि चेंज हो जाए फ्यूचर में कि शादी के बाद लाइक द मेल कैरेक्टर कम्स टू द फीमेल कैरेक्टर्स हाउस एंड फीमेल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। सो इट ऑल कैन चेंज, बट ऑन अ पर्सनल लेवल अगर अपन एक एक जने को भी चेंज कर रहे हैं, सो इट्स मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इट्स वेरी गुड एंड मतलब सच अ चेंज लॉन्ग टर्म में ही आ सकता है, मतलब इतना जल्दी तो नहीं आ सकता। That's all. Thank you, Chirag, and thank you, Pranav and Manvi. With that being said, we're going to wrap up the fifth episode of the High School Bus series. Thank you for joining us today, and I hope the discussion helped and was fruitful, and there will be attitude changes. Hum sab mein. Thank you for joining us, and have a good day. थैंक यू। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।